Hello, welcome back to your channel Chemistry Simplified. We are back with another series of IUPAC nomenclature of organic compounds. In this video, we are going to discuss the IUPAC rule for writing the nomenclature of aromatic compounds. So before we understand the rules for IUPAC, we should understand what is an aromatic compound. So let's get started. IUPAC rule for aromatic compounds. What is an aromatic compound? Basically, the word aromatic has come from the word aroma. Okay, aroma means a kind of smell, khushbu. Okay, now, or in the language of chemistry, we say that aromatic compounds are those compounds which these are cyclic compounds basically, which are having more than one ring or more than one ring. These are the cyclic compounds which are having a ring. Compounds with a ring. It can have one ring, it can have more than one ring. It is a planar cyclic compound. Okay, and the simplest hydrocarbon, aromatic hydrocarbon we have is benzene. You might have heard about benzene, which is a cyclic compound. Okay, having the alternating double bond, single and double bond. Okay, it is cyclic, it is planar, and it also follows the Huckel rule, if you remember. Right now, what are the rules? हम यहाँ rules समझ रहे हैं, because if you want to understand more about benzene, then we'll probably have to discuss in the another video. Okay, so let us discuss about the rules for writing the. Just a second, I am not getting my. We will discuss the rules for writing the IUPAC. So rule 1. What is rule 1? It says that the word root for the derivative of benzene is benzene. Okay, that means the parent chain will have the word root of benzene. Okay, that is the first rule. Okay, rule 1 is the word root for benzene derivative is benzene, and if we have a substituent, then it is added as a prefix, and substituent is added to the prefix. For example, this is a benzene ring. This is the nucleus. Okay, and here is the place of the substituent. So this is my substituent side chain, and this is the nucleus. Okay, so if you want to name any, for example, अगर हमारे पास मान लो एक बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर एक क्लोरीन है, ठीक है, ये आपका मेन पेरेंट रिंग हो गया, और क्लोरीन हमारे पास यहाँ पे क्या है, इज द सब्स्टिट्यूएंट. सो हाउ वी नेम इट? वी नेम इट एज सब्स्टिट्यूएंट. हमारा क्या बनेगा? प्रेफिक्स बनेगा. ये क्या बन जाएगा हमारा? क्लोरो बेंजीन. इफ अगर हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर अगर एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? मिथाइल बेंजीन. और इट हैज अनदर नेम, दैट इज टॉल्यूइन. अगर हमारे पास एक बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर एक ऑयल ग्रुप अटैच है, then we call it as phenol. If we have a benzene ring and इसके ऊपर अगर NH2 ग्रुप है, तो हम इसे बुलाते हैं aniline. ओके, अगर हमारे पास बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर अगर CHO है, then it is benzyl dehyde and so on. तो इस तरीके से हम अगर सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट है तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. नाउ
Apart from this, suppose if there are more than one same substituent, if it is present on the benzene ring, तो फिर हम उस केस में क्या करते हैं, हम उसके लिए न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज करते हैं, जैसे डाई, ट्राई, टेट्रा एंड सो ऑन. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई सब प्लेस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट. सपोज आई हैव रिटन क्लोरीन. ठीक है, ये आपका पोजीशन ऑर्थो होता है, ये होता है पोजीशन मेटा, और ये हो गया पोजीशन आपका पैरा. ओके, सो आइदर वेज यू कैन राइट. अगर मान लीजिए आपके इस पोजीशन पे एक और क्लोरीन प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम इसे नेम कैसे करेंगे. ये आपका पहला कार्बन क्लोरीन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा. So if the same substituent is present on different position, then we name it as 1,2 dichlorobenzene. Okay, 1,2 dichlorobenzene. और suppose अगर आपका सेम सब्स्टिट्यूएंट एक पहला और एक चौथे पोजीशन पे है, तो हम इसे क्या कहेंगे. It can be 1, 2, 3 and 4. 1,4 dichlorobenzene. ठीक है, अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट. अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट सपोज अगर प्रेजेंट होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे आयोडीन ग्रुप है. ठीक है, अगर आपके पास डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है, देन हाउ वी विल राइट. दिस इज योर फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. वी विल हैव टू राइट 2, 3 and 4. So it will be 1 chloro, 3 iodo, 4 methyl benzene, according to the priority chart. And also we have to follow the alphabetical order. So IPSC लिखने के जो rules होते हैं वो almost same ही होते हैं. Okay, but we have to keep in mind कि हमारा benzene ring है या फिर कोई cyclic compound है, so we have to name it accordingly. ठीक है, इसके अलावा कुछ ट्रेडिशनल रिंग चेन्स भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है आई एम नॉट राइटिंग द रूल्स हियर, बट आपको डिस्क्रिप्शन में मैं एक PDF अपलोड कर दूंगी जिसमें आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे. आई थिंक आई नीड टू चेंज माई डस्टर. फॉर एग्जाम्पल, ये आपका एक सिंगल बेंजीन रिंग है. ठीक है, दिस इज योर बेंजीन. अगर आपके पास 2 कंडेंस्ड रिंग है, तो हम इसे क्या कहते हैं, नैप्थलीन. अगर मेरे पास 3 कंडेंस्ड रिंग है, तो हम इसे क्या कहते हैं, एंथ्रासीन, एंड सो ऑन. ठीक है, हम धीरे धीरे डिस्कस करते जाएंगे. अगर हम एक चैप्टर की तरह डिस्कस करेंगे अल्कोहल, एल्डिहाइड, so we'll do it in different videos. Okay, now we'll stick to the IUPAC only. So let's quickly practice some questions of this aromatic compound. Okay, so first question I have is, हमारे पास है question, थोड़ा खराब हो चुका है और आई थिंक आई हैव टू चेंज इट क्विकली. Sorry for the inconvenience. Okay, so we have the first question. Quickly. पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, फिर हम एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे.
we have included cyclo also cyclos compounds also, because almost it is the same, not much difference. ओके तो हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज अस अगेन अ साइक्लिक कंपाउंड. अब यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप है. ठीक है, कल भी हमने डिस्कस किया था कि फंक्शनल ग्रुप अगर दो अलग अलग होगा तो हम उसे कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी. अब ये मिथॉक्सी ग्रुप है और ये एनिलीन ग्रुप है. इसमें किसकी ज्यादा प्रायोरिटी होगी, इसमें प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी, कौन सा ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए हमें, मिथॉक्सी ग्रुप को या एनिलीन ग्रुप को, कौन सा ज्यादा होगा, दिस, राइट. सो नेमिंग हम कहाँ से करेंगे, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो. 1 2 3 4. ओके, तो और ये आपका रिंग है, तो नाम क्या हो जाएगा, एक बार सोचो. प्रायोरिटी, क्वेश्चन मैंने सही लिखा है, एक बार बस मुझे क्वेश्चन देख लेंगे. आई होप. ओके, क्वेश्चन आई थिंक द क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके, सो कैन यू गिव द आंसर. प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी, एनिलीन की. नाम हम कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से. नंबरिंग किधर से होगी, इधर से. 1 2 3 4. एंड व्हाट इज दिस ग्रुप, मिथॉक्सी. व्हाट इज दिस ग्रुप, एनिलीन. सो द नेम विल बी 4 methoxy. This is benzene and this is we have a amine, benzene amine. ठीक है. अब यहाँ पे क्या होगा, this is cyclo group, right, cyclohexane. Now this is a double bond, यानी कि आपका ये कीटो ग्रुप है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट क्या है हमारे पास, मिथाइल है. नेम कैसे होगा, 1 2 3 4 5 and 6. ठीक है, नेम विल बी, सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखेंगे और फिर यहाँ पे हम अपना साइक्लिक ग्रुप को लिखने से पहले उसको प्रीफिक्स में डालते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, दिस इज साइक्लोहेक्सेन, सो साइक्लो एंड हेक्सेनॉन. ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन एल्डिहाइड इज हैविंग हायर प्रायोरिटी, 1 2 3 and 4. So this will be 4 methoxy benzaldehyde or benzyl carbaldehyde we can write. कार्बल्डिहाइड. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, How we will name this? क्या आप ये ट्राई कर सकते हैं खुद से, मैंने 3 किए हैं, आप 3 कर सकते हैं. यहाँ पे देखिए सेम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, यहाँ पे आपके पास 1 2 3 अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे भी आपके बेंजीन रिंग अटैच है. लेट्स ट्राई 1 2 3 4. होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितने कार्बन है आपके पास, 5 कार्बन है. ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे. अल्फाबेटिकल ऑर्डर अगेन, सो इट विल बी 4 क्लोरो
2 isopropyl 3 methyl cyclopentanone, क्योंकि 5 कार्बन इसलिए पेंटेनॉन. ठीक है, ये तो बहुत इजी है. 1 2 3 थर्ड पोजीशन सेम ग्रुप है. 1,2 डाई नाइट्रो बेंजीन. और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका ये बेंजीन रिंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट होगा, इसलिए हम इसको फिनाइल लिखेंगे. अब इसमें यहाँ पे क्या हो गया, अगेन दिस इज 2 ब्रोमो फिनाइल and this is 1 2 3 प्रोपेनअमीन. ठीक है, अब धीरे धीरे करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा. अब यू नीड मोर एंड मोर प्रैक्टिस. देयर आर मेनी मोर क्वेश्चन, सो आई विल ट्राई टू ब्रिंग द डिफरेंट चैप्टर्स एंड नोमेनक्लेचर फॉर अल्कोहल, एल्डिहाइड. तो हम ये अलग अलग चैप्टर वाइज कर सकते हैं. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर कहीं पे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, यू कैन डायरेक्टली कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन. इफ यू नीड मोर क्वेश्चंस देन ऑल्सो यू आर फ्री टू आस्क. Okay, I hope this video was clear to you and hoping to see you next. Okay, so stick with me, learn with me and wait for the next video. Thank you so much.